Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, this side Samarya here once again. So, today is the date, guys, 30th of December, and this is the live trades that I've taken today, guys. I'll be showing it to you. So, before I start, I am just doing one thing. I'll be taking care of the stocks here, right, guys? Whatever the names are here, and we'll be just be looking at the trades, right, afterwards. So guys, at 8 a.m. only, almost 8:15 a.m. I told to at least look for the ICICI Lombard and Adani Greens. Take the trades based on the trend lines, and after that I also told that nearby that area only to take a consideration into GET and D. Okay, guys. Breakout may happen. Positive momentum is going to be happening after the areas of 170 and 20 is going to be breaking, right. उसके बाद एस्कॉर्ट्स सभी को पता होगा, मैंने जैसे बोला था कि दैट इज अ गुड स्टॉक फॉर द होल्डिंग, नॉट फॉर द होल्डिंग पर्पस बट फॉर द शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग. ओके गाइज, तो चलो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टॉक गाइज, ICICI Lombard. तो अगेन इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट गाइज, लाइक see guys, there is a price action here, okay, and the price action is simple here. If you will be joining at two swing highs, right, this is the first high, this is the second high, and after that at this particular point the stock actually has given a momentum, right, and it has given the closing above the candle as well. But yes, our entries were late, okay, we are not entering here, but after, like, again, the point that I wanting you to understand regarding the price action is guys, कभी भी आपको यहाँ पे जो मोमेंटम मिल रहा है, राइट, तो आपको वहाँ पे दोबारा एंट्रीज मिल सकती हैं, ठीक है. अगेन अगर आप ये चीज देखोगे तो स्टॉक इज ऑलमोस्ट इनटू अप ट्रेंड, राइट, इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट. ये डेली का चार्ट है, तो यहाँ से स्टॉक एक ऑलमोस्ट रेंज से निकला था, ठीक है. ये कोरोना, दिस इज द कोरोना टाइम व्हेन ऑल द स्टॉक्स वेंट इनटू कोरोना क्राइसिस. आफ्टर दैट द होल स्टॉक this goes into a consolidation phase. After that this rally starts after breaking out this whole consolidation region, right. उसके बाद फिर से रैली स्टार्ट हुई, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर से अगेन द सेम थिंग दैट आई कीप ऑन टेलिंग सो मेनी टाइम्स, राइट. A stock never goes in a single direction upside, right, it takes some rests, and again it goes in a stairways manner, right. So let's just go and check it out on the 5 minutes time frame chart. What were the activities guys here? एंड अगेन यहाँ पे अगर आप स्टॉक चेक करोगे तो आज गैप अप ओपन हुआ था गाइस, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो आई गेस एंट्री आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे तो नहीं बनेगी, बट इफ यू विल बी जॉइनिंग इट आउट समथिंग लाइक दिस, आई गेस यहाँ पे अगर आप इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन है गाइस, ठीक है. एंड यहाँ पे एक्चुअली आज एंट्री नहीं मिलनी थी, गाइस, अगेन क्योंकि बिकॉज द स्टॉक वेंट इनटू कंसोलिडेशन फेज, एंड अगेन एट द एंड ऑफ टाइम it is kind of making a BTST action. So possibly tomorrow I'm expecting that the stock can go upside, and it will be giving some positive momentum. Afterwards again guys, this is Adani Green. If you will be checking it out, you can see how beautifully the stock has gone up. इसका भी same reason था guys, if you will be checking the 1 day time frame, and there is more momentum coming up in Adani Green as well guys. अगर आप ये चीज़ चेक करोगे तो ये स्टॉक यहाँ से again if you don't see the Adani Green guys this is a stock which has given almost, like, I don't know, huge amount of return, right. During the corona crisis the stock was almost only at 100 rupees, and it has gone almost like 1200 rupees high it has made, right, here nearby, almost 956%, damn it, for a stock. and ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास दोबारा जाएगा. अगर आप यहाँ पे चीज़ चेक करोगे तो ये स्टिल अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है. यहाँ पे अगेन ये कब रेंज तोड़ेगा ये मेरे को नहीं पता है, बट जहाँ तक लग रहा है मेरे को कि नए साल के आने वाले टाइम में ये तोड़ ही सकता है, ठीक है. सो अगेन दोज ऑफ यू हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन अदानी ग्रीन, जिनके पास पहले टाइम नहीं मिला था, जिन्होंने पहले मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, right now is the time guys. This is the point where you can add in the CNC, right. आप 1000 rupees या 1050 के करीब इसको buy कर सकते हो, and you can just simply keep the target of say 1000 rupees here, okay. The 50 rupees only target is going to be, and you can keep a minimum of target, this is a stop loss only 1000 rupees, 50 rupees only, and the minimum target that I'm expecting is 1200 rupees. But yes, this stock can go beyond as well, I don't know, ओके कितना जाएगा ऊपर वो मेरे को पता नहीं है, बट हाँ किसी को लेना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ऑलवेज ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स एज वेल 50% ऑफ द क्वांटिटीज. तो हम आगे अभी बात करेंगे भी बहुत सारे स्टॉक्स की, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे सपोज इफ यू विल बी बाइंग 100 क्वांटिटीज ऑफ द स्टॉक्स, यू कैन बाय 50% ऑफ द क्वांटिटीज हियर वंस दिस स्टॉक प्राइस हिट्स इनटू दिस एरिया 1150 या 1200 के करीब. अगर यहाँ पे मोमेंटम आता है तो यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटीज को बुक कर सकते हो. उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को जितना भी चल रहा है उसको चलने दो, बट स्टिल मेक श्योर जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा उसको फिर जितना जिस प्राइस पे आपने बाय किया उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो, या फिर अगेन यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा छोटा सा स्विंग ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे होएगा तो आप उस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो गाइस, ठीक है. रीसेंट जो स्विंग रहेगा, ठीक है. आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. एनीवेज आज इसमें ट्रेडिंग में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली गाइस. तो
आई डोंट नो इफ यू वुड हैव ट्रेडेड इन दिस एज वेल। तो उसके बाद अगला स्टॉक है GET&D ऑफ कोर्स। तो गाइज ये भी स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो इसमें भी बहुत अच्छे पैटर्न्स बन रहे थे। सी अगेन गाइज एक चीज समझ के देखो, जब भी स्टॉक एक रैली ले लेता है ना यहाँ से ऐसे, मतलब अगेन नॉट जस्ट इन दैट ऐसे वाली चीज, तो स्टॉक में थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स की मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि पैटर्न कैसे बनता है और किस तरह से आपको उसमें काम करना होता है। अभी यहाँ पे गाइज अगर आप एक चीज देखोगे, स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारी देयर इज अ फ्लक्चुएशन, राइट। सो इन सच स्टॉक्स ऑफ कोर्स द रिस्क इज ऑफ कोर्स हाई, बट या रिवॉर्ड इज एज वेल हाई, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस 100 रुपए के स्टॉक ने अगर आज आप मोमेंटम देखो कि इट हैज गिवन 2.24% एंड इसका हाई आज का जो लगा है 102 एंड लो इज 114 गाइस। सो देयर इज ऑलमोस्ट एन एम्पल अमाउंट ऑफ से मोटा मोटा 10 रुपीज और 8 रुपीज ऑफ मोमेंटम हैज सॉरी हैपेंड इन द स्टॉक, राइट। तो ये भी चीज थी कि आपको इसमें देखना पड़ेगा कि स्टॉक में काम हो कैसे रहा है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हेयर द ट्रेंड लाइन इज एक्चुअली गेटिंग ब्रीच्ड, बट अगेन एक ही कैंडल ने मोमेंटम बहुत ज़्यादा दे दिया है। 30 मिनट्स का चार्ट पैटर्न है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ओके 15 मिनट्स ऑल्सो, आई थिंक 5 मिनट के ऊपर ही होगा सारी की सारी या ओके ओके। हेयर यू कुड हैव एंटर्ड, राइट। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन हियर, दिस कैंडल हैज गिवन द क्लोजिंग अबव द ट्रेंड लाइन, सो आफ्टर द कैंडल हैज क्लोज्ड हियर, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको बहुत ही जाइगेंटिक प्रॉफिट मिला है गाइस। So those of you who are having this stock, they can still hold it in the CNC as well guys, because ये स्टॉक अगर मैं टारगेट बताऊं आपको तो मिनिमम 150 रुपए तक के जाएगा, ठीक है, मिनिमम है इसका। टाइम कितना लगेगा वो नहीं पता है बॉस, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द अगेन हियर द मार्केट। सो गाइस इन द मॉर्निंग ओनली आई थिंक एवरीवन नोज दैट आई टोल्ड अबाउट एस्कॉर्ट्स, ठीक है, रैली स्टार्टिंग एंड ऑल दो थिंग्स, बट अगेन व्हाट हैपेंड टुडे गाइस, आई हिट अ लॉस हियर। एस्कॉर्ट्स में ना सारे मतलब रोना ही पड़ा है आज मेरे ख्याल से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दिस जो यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई है ये आज के दिन इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, बट अगेन मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन सुप्रीम है, मार्केट में मार्केट की चलती है बॉस, मार्केट में आप या मैं क्या सोचते हैं उससे बिल्कुल भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो दैट इज अगेन दैट हैपेंड, राइट। मार्केट ने ऐसे ऊपर जाने की कोशिश की, बट अगेन द मार्केट काइंड ऑफ फॉल अगेन, एंड आज भी सारा दिन यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड ही रहेगा इस, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे मतलब कुछ इसमें बात बन नहीं रही है, ठीक है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, इसका ये भी जो अगेन दिस इज अगेन द सेम काइंड ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रेंज बना रहा है ये स्टॉक, ये बहुत अच्छा बन रहा है पैटर्न यहाँ पे, ठीक है, 30 मिनट्स के ऊपर, बिकॉज अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट देगा यहाँ पे और 1 डे को भी देखोगे तो 1 डे के ऊपर भी बहुत अच्छा एक रेंज का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। सो एज सून दिस रेंज विल बी closed right above on a side on the above side, the same thing that happened here, right। यहाँ पे जैसे रेंज बना था इसने ऊपर काटा तो बहुत अच्छा ऊपर गया, बट अगेन यहाँ पे भी जैसे एक रेंज बना हुआ था तो अगेन साइड सी गाइस, अगेन सिंपल सी चीज़ है, किसी को पता नहीं होता कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मैं मिनिमम टारगेट लगा के चल रहा हूँ गाइस, मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं बोलूँ 1300 या 1320-30 रुपये का तक 1320 तक target can easily be achieved, okay। after that this can also happen, the stock can also make a higher high as well, like जो इसका ऑल टाइम इसने अभी कोरोना के बाद का हाई मारा है तो ये उसके ऊपर भी जा सकता है। एंड अगेन इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट, दिस इज अ वेरी ग्रेट स्टॉक गाइस, इसका ऑल टाइम हाई ही मेरे ख्याल से इसने कोरोना के टाइम के बाद ही मारा है। दिस इज द मंथली चार्ट राइट नाउ आई एम ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इसका ऑल टाइम हाई बिफोर कोरोना इट वाज नियर बाय 1000 रुपीज गाइस, इन 2018 इट मेड अ हाई, आफ्टर दैट इट केम डाउन अगेन, इट ट्राई टू गो अप बट अगेन देन कोरोना केम, आफ्टर दैट अगेन राइट नाउ इट हैज मेड अ हायर हाई, एंड अगेन 1500 level of course I think so this stock can achieve in some time, of course I don't know, like 2 3 4 5 months, but whenever it is going to happen, it is going to happen, right। so there is no point in discussing right now। so if you want to buy this stock you can buy। आफ्टर दैट गाइज आई टोल्ड यू अबाउट आइशर मोटर एज वेल, एंड सी गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना आइशर मोटर के ऊपर भी, यही जो चीज़ मैं बोल रहा था अदानी ग्रीन के अंदर, राइट, यही चीज़ यहाँ पे इसने पैटर्न ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इस पैटर्न ने ब्रेकआउट कर दिया, एंड इसमें अगर आप चेक करोगे सो द स्टॉक वॉज ऑलमोस्ट फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन, राइट, एंड अगेन यहाँ पे इसने इस रेंज से भी ब्रेकआउट किया, तो इसका गाइज एक्चुअली अगर मैं टारगेट की बात करूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट इज गोना मिनिमम हिट अप टू 2600 गाइज, ठीक है। उसके बाद
5 मिनट के अगर ऊपर एक्टिविटी देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 951 के करीबन इसमें बोला था। थोड़ा सा डिले हो जाता है गाइस, बिकॉज अगेन एक चीज़ समझ के देखो, मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का भी ट्रेड सेटअप देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग मल्टीपल स्क्रीन एज वेल एंड ऑल्सो आई एम गिविंग द अपडेट्स टू द लाइव स्टूडेंट्स एज वेल, राइट। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया था। एक्चुअली आपकी एंट्री कहीं यहीं पे होनी थी, ठीक है, नियर बाय दिस हाई ऑफ द कैंडल, ठीक है। तो आपको 950 के करीब मैंने एंट्री बताई, तो ऑलमोस्ट ये, हाँ 950 का कैंडल यहाँ पे है। तो बट स्टिल जैसे मैं बोलता हूँ कि 2000 या उतनी रेंज के अगर कोई स्टॉक है उसमें आपको 4-5 रुपये इजीली मिल जाएंगे गाइज। सो यू कैन सी दिस राइट, फ्रॉम 2490 इट हैज़ ऑलमोस्ट गॉन 17। इसका हाई क्या है आज का? 25 गाइज, द हाई इज देयर, राइट। Great number again. Last time I don't know which stock was that. 23 the high was made right in that stock. I forgot the name of the stock. सो वो चीज़ है। एंड अगेन गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे आपको मैं चीज़ें दिखाना चाहता हूँ वर्लपूल की गाइस। सी दिस इज अगेन द थिंग हियर दैट यू शुड बी लर्निंग इट आउट। ये देखो, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, स्टॉक में बहुत अच्छी रैली आई थी, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये बहुत अच्छी रैली आई थी। उसके बाद स्टॉक ने हॉल्ट किया और तीसरे दिन यहाँ से स्टॉक ऊपर भगा के ले गया, ठीक है। और अगर आप चेक करोगे तो एंटायर एक्शन हैज हैपेंड आफ्टर दी लाइक ऑलमोस्ट 2 PM ऑनवर्ड्स, राइट। यहाँ पे सारा दिन स्टॉक थोड़ा थोड़ा ऊपर करके रेंज में था, बट आफ्टर दैट 2 PM द होल प्राइस एक्शन बिकेम इनटू एक्शन and this whole good momentum has happened, right? Now see again guys, this is why I always keep on saying, right, there is no predictability of the time here, okay? स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टॉक होल्ड कर रहा था, ठीक है, लोगों को लगा कि ये गिर जाएगा, एंड मैंने मेरे ख्याल से कल के टाइम पे बोला भी था, पता नहीं कल पता नहीं परसों, कि बॉस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही थी, वहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। किसी ने अगर मिस कर दी हो एंट्री तो वो वहाँ पे ले भी सकता है। CNC में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो this is about the Whirlpool guys. After that the next stock was Apollo Hospital, I guess I told। अगर आप इसमें guys चेक करोगे अपोलो हॉस्पिटल में, in Apollo Hospital I told to buy the stock at 10 AM only, and the target was like Hari Ichha, like I was expecting that it is going to go up, and 2365 guys only was a stop loss. I still remember there was only 3 to 4 rupees of the stop loss, and the target I was expecting was huge, okay. So if you can check it out, the Apollo Hospital here, at 10 AM, right, nearby. Oh. So guys, nearby this candle, it was a time 10 AM, right? तो यहाँ पे I was expecting that after doing this consolidation, right, मार्केट में ये जो पुल बैक आया था, तो यहाँ पे मेरे को लगा था ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपनी रैली दोबारा चालू कर लेगा ऊपर की साइड, बट अगेन द स्टॉक ऑफ कोर्स केम डाउन एंड वी हिट अ स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 रुपीज़। एंड आफ्टर दैट इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट, मार्केट में स्टॉक अगेन एक रैली अच्छी देके गया। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस स्टॉक में आपको काम करना है ऑफकोर्स आपको वहाँ पे बार बार एंट्री लेनी पड़ेगी बॉस, ठीक है। तो दिस इज अगेन द रिस्क, राइट। आपका अगर रिस्क, मैं हमेशा बोलता रही, अगर आपको इसी स्टॉक में काम करने का मन है ना, अगर आपको उसके पैटर्न्स अच्छे लग रहे हैं और वहाँ पे लग रहा है कि आपको ब्रेकआउट होगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपका में ब्रेकआउट फेल हो जाए, ठीक है, सेकंड टाइम फेल हो जाए, बट थर्ड टाइम जब भी वो ब्रेकआउट देगा, राइट, थर्ड टाइम व्हेनेवर द स्टॉक इज गोना गोइंग टू योर सेम डायरेक्शन एज पर द एनालिसिस ऑफ द स्टॉक एनालिसिस, राइट, द प्राइस एक्शन, द फर्स्ट 2 स्टॉप लॉसेस गाइज दैट वोंट मैटर एनीथिंग, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे 4-4, 5-5 रुपए के स्टॉप लॉस हिट हुएंगे, बट अगेन थर्ड टाइम वंस यू गेट अ एंट्री आफ्टर दिस ब्रीच ऑफ ट्रेंड लाइन, यू कैन सी हाउ ह्यूज अ प्रॉफिट हैज कम हियर, राइट। तो इसीलिए मैं बोला था इसमें कि टारगेट हरी इच्छा है, सुबह ही बोला था, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट द गुड मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू कम इन अपोलो हॉस्पिटल, बट अगेन वो कब होता है बॉस, वो देखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे बोला था BPCL भी फटेगा, ठीक है, बाय कर लो 10:50 पे। देन अदानी एंटरप्राइज एज वेल, आई टोल्ड एट ऑलमोस्ट 11 AM, कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 484। उसके बाद मारुति भी बोला था, तो चेक कर लेते हैं इन सभी की एक्टिविटी कैसी है गाइस। मारुति चेक कर लेते हैं पहले। अगर मारुति चेक किया हो यार, तो क्या गजब का रिटर्न दिया स्टॉक ने एक्चुअली। आज 11 बजे के करीब मैंने बोला था, ये रहा दिस ऑलमोस्ट नियर बाय दिस पॉइंट द स्टॉक, लाइक इफ़ यू चेक इट आउट, दिस इज अ स्टॉक ऑफ 7500, राइट। तो यहाँ से अगर आप इसकी चेक करोगे मोमेंटम, लाइक फ्रॉम 7500 इट हैज़ गॉन ऑलमोस्ट 75, तो 75 रुपये कम नहीं होते हैं। And to be very frankly speaking, I'm still holding the stock, but because I will just tell you one thing, यहाँ पे again जो सेम चीज़ अदानी ग्रीन में है, जो सेम चीज़ और भी जो स्टॉक्स में बताया मैंने, कौन सा था, मैं स्टॉक्स भूल गया यार, एक और स्टॉक में मैंने बताया था ना 1 डे के ऊपर,
कि आपको वहाँ पे पैटर्न अच्छा बन रहा, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है गाइज, स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद जिस भी दिन ब्रेकआउट होगा ऑफ कोर्स द सेम थिंग इज गोना हैपन। आई गेस इसका ही था, स्कॉट्स का ही था, राइट, द सेम पैटर्न हियर इट वाज, या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, जिस दिन ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा गाइज, ठीक है। तो अगेन गाइज यू हैव टू कीप एन आई ओके ऑन द स्टॉक्स, ऑन द गुड स्टॉक्स विच आर अबाउट टू ब्रेक, क्योंकि वो कब होगा वो हम किसी को ऐसे बोल नहीं सकते, राइट, ठीक है, कि इसी टाइम पे इतने बजे ब्रेकआउट होगा, बट अगेन व्हेनेवर दैट हैपेंस बी मेक श्योर दैट यू आर रेडी विद दैट, ओके। सो यहाँ पे इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ गाइज, तो आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक एक्चुअली, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस स्टॉक कैन गो एक्चुअली नियर बाय 8,000। यार मैं इस टाइम का इसका हाई बना के सोच रहा हूँ, ठीक है, लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मारुति शुड गो नियर बाय 8,000 एज वेल, यू नो, बाय नेक्स्ट मंथ पॉसिबली और विद इन सम वीक्स, बट देखते हैं, राइट, मेरे सोचने से क्या ही होगा। तो लेट जस्ट सी हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट एंड हाउ द मार्केट वर्क्स। तो मैं अपने बीच बीच में पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करता रहूँगा गाइज। सो उसके बाद है अदानी एंटरप्राइजेस, या हियर इट इज़ अदानी एंटरप्राइजेस। सो ये भी 11 बजे के करीब बोला था आपको, 5 मिनट्स का पैटर्न आप अगर देखो, ओ एंड में गिर गया काफ़ी स्टॉक ही ग्रेट। तो एनीवेज ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बोला था, ये होल्डिंग के लिए है भी नहीं स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे गाइज, ये स्टॉक में यहाँ पे रेंज बना के बैठा हुआ था, तो ये इसने जब रेंज का ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 11 बजे ही एग्जैक्टली, तो 400 रुपये का स्टॉक है गाइज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 400-500 रुपये के स्टॉक में 2 रुपये मोर देन इनफ। सो 490 और 491 पे भी अगर आपने एंट्री ली तो 495 कितना हाई मार्क है, 496 का हाई है, राइट, इजी टारगेट अचीव हो गया गाइज 2 रुपीज़ का, दैट इज मोर देन इनफ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम दिस स्टॉक। उसके बाद BPCL है गाइज, तो BPCL में भी बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना रहा था, ये भी करीबन उसी पॉइंट पे बोला था, एंड इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट, इट गेव अ ह्यूज ब्रेकआउट हियर एज वेल, एंड आफ्टर दैट मार्केट स्टिल केम डाउन कंसोलिडेटेड, और उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। इसको गाइज अगर आप 1 डे के ऊपर देखोगे तो सेम चीज़ जो बाकी स्टॉक्स में हो रही है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग यू नो कि कल है थर्सडे एक्चुअली, ठीक है गाइज, तो कल है एक्सपायरी का दिन भी, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में कुछ गिरावट आ सकती है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ थर्सडे, दैट इज द लास्ट ऑफ दिस मंथ, राइट। जो मंथली एक्सपायरी होती है वो थोड़ी सी हैविली भी होती है, ठीक है। एक बार ग्लोबल सेंटीमेंट और ग्लोबल क्यूज को भी देखने पड़ेगा, बेस्ड ऑन दैट यू नो आई कैन कमेंट एनीथिंग। बाकी अगेन कल मैं बोलूँगा, आपने जो आज की पोजीशंस ली हैं पोजिशनल के बेसिस पे उसको रखो, ठीक है, बट कल अगर आपको कोई स्टॉप लॉस उसमें कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाने दो, और इफ़ यू वांट टू बुक द प्रॉफिट्स एज वेल इन द इनिशियल हाफ यू कैन डू दैट, बट मेक श्योर कल आप ट्रेलिंग मत करना, ठीक है गाइस, बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन मोमेंट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, एंड स्टॉक्स एक्चुअली काइंड ऑफ डू सम अनप्रेडिक्टेबल मूव्स एज वेल। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, BPCL में भी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है, कल अगर नीचे कहीं पे आता है करीबन 370 के पास तो इसको पक्का ले लेना, ठीक है गाइस, बहुत अच्छा पैटर्न है, एंड ये स्टॉक होल्डिंग के लिए भी है गाइस, अगर किसी ने नहीं लिया है तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे SCA का मेरे को स्टॉक दिखाना था आपको, आप ये चीज़ देखोगे, राइट, कि ये स्टॉक यहाँ से इस रेंज में से निकला, इसके बाद यहाँ पे फिर से एकदम यू नो कंसोलिडेट हो गया था, ठीक है, अभी फिर से यहाँ से इसकी अपर साइड शुरू हो गई। तो अभी मैं वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक कैंडल ऊपर बनाया तो 2-3 कैंडल बाद ही जैसे वर्लपूल में होता वो ऊपर फट के दोबारा चला जाएगा, या यहाँ पे भी जैसे 2-3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था फिर से ऊपर एकदम इतना गैप अप ऊपर चला गया, राइट। सी गाइस मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, मार्केट में ना कोई भी चीज़ 100% श्योर शॉट नहीं होती है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइक मार्केट में रिस्पेक्ट करो मार्केट की, ठीक है। इससे लाइक यू नो आपको एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि अपॉर्चुनिटीज देयर आर ऑलवेज ओके, एंड राइट नाउ आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट दिस स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू मिनिमम ऑफ 100 रुपीज़ गाइज। सो अगेन लाइक अपने रिस्क के ऊपर इसमें आप काम कर सकते हो, इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आप इसी के आज का जो कैंडल का लो है 84 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। कल आपको अगर थर्सडे है ऑफकोर्स, कल अगर स्टॉक नीचे मिलता है तो इसको खरीद सकते हो, तो अगर नीचे कहीं पे मिल गया तो बेटर है, अदरवाइज यहीं पे अगर कहीं पे खुल के ऊपर की रैली स्टार्ट करता है तो दैट इज अगेन गुड, राइट। बट अगेन ये रेंज अभी तक है गाइज यहाँ पे, ठीक है, तो रेंज जब तक ये तोड़ेगा नहीं ना तब तक इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज मिनिमम इसका 100 का टारगेट है आने से, लाइक एंड उसके ऊपर लाइक 110 या 120 तक भी जा सकता है स्टॉक, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि स्टॉक के ऊपर किस हिसाब से काम हो रहा है गाइज, ठीक है। सो ओके गाइज, आफ्टर दैट मारुति ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, राइट, एंड द लास्ट स्टॉक इज गाइज मैक्स इंडिया। तो ये गाइज एक्चुअली ओके सॉरी सो या द लास्ट स्टॉक इज गाइज मैक्स इंडिया। तो यहाँ पे एक्चुअली गाइज ये भी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा नियर बाय 60 का रहेगा, एंड आपके एंट्री जो पॉइंट्स रहेंगे दैट विल बी नियर बाय 61 to 62, एंड आज तो इसमें कुछ हुआ नहीं है गाइज फ्रेंकली स्पीकिंग,
क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो एक ट्रेंड लाइन थी वो ऑलमोस्ट ब्रीच होने के कगार पे थी, बट हुई नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अगर किसी ने एंट्री लेके रखी है तो दे कैन स्टिल बी इंटैक्ट, बिकॉज स्टॉक का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है गाइज। ये देख रहे हो कितना बुलिश कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे हॉल्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे आया है फिर से स्टॉक। तो हो सकता है कहीं पे यहाँ पे कल जैसे थर्सडे कल हो सकता है थोड़ा सा और गिरे, ठीक है, 60-61 तक। अगर नीचे गिरता है तो इसको प्लीज़ ले लेना, ठीक है। एंड यहाँ से जब ये घूम के ऊपर जाएगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस स्टॉक कैन गिव यू अ रिवॉर्ड ऑफ अप टू 65 और 70 एज वेल, इन द कमिंग डेज। इसका एक बार डेली चार्ट हम देख लेते हैं। एक्चुअली ये कंपनी गाइस नई नई अभी ही आई है मेरे ख्याल से। इसको मैंने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया था मेरे को खुद को नहीं पता है। देर आर सम इंडिकेटर्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो एनीवेज लाइक शॉर्टलिस्ट किया था इस कंपनी को गाइज मैं भूल गया मैं एक्चुअली किस बेसिस पे किया था। सो उसके बाद अगेन गाइज ओके, एनीवेज लाइक इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन दिस यू कैन ट्रेड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सीधी सी बात है, लाइक मेरा बस एक काम था कि आपको मैं स्टॉक एनालिसिस करके था, कोई भी स्टॉक हो सकता है वो, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू गाइज, इफ़ यू वांट टू ट्रेड यू कैन ट्रेड। एंड या इसमें मेक श्योर यू डू इट इन, इसमें अगर आपको ट्रेड करना भी है देन ओनली ट्रेड इट इन CNC गाइज, ओके, डोंट डू इट इन MIS। आई गेस कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो अलाउ भी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड कुछ ब्रोकर्स के पास अलाउ होता है, बट आई विल हाईली रिकमेंड डू इट इन CNC ओनली, ओके, बिकॉज इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहती है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अभी आपको मैं दिखाता हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या हुई आज की एक्चुअली। सो दिस इज माई ट्रेडिंग चार्ट हियर गाइस। टुडे आई हैड अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 33,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 37,000 का लॉस था, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई एम ओनली हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। सो ऑलमोस्ट ओवरऑल नेट लॉस जो मेरा रहा है इसका 33,000 का रहा है गाइस। यहाँ पे दिक्कत ये होगी गाइस कि आज एस्कॉर्ट्स में एक्चुअली सुबह मेरा लॉस हो गया, ठीक है, 26,000 का। अब इसमें प्रॉब्लम यही थी कि एक्चुअली आई मिस्टेकनली टुक 2 लॉट्स ऑफ फ्यूचर्स में मैं जैसे काम कर रहा था। यू कैन चेक इट आउट, दिस इज द फ्यूचर्स राइट, डेरिवेटिव सेक्शन है ये। अभी हुआ क्या यहाँ पे, एक्चुअली इट इज सो मच कोल्ड, आई वॉज नॉट इवन एबल टू टाइप प्रॉपरली, एंड इन दैट हरी एंड बरी my like the lot size like mistakenly I typed 2 and it was triggered at that point. सो एंड अगेन उसके बाद हुआ क्या, मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मेरा जिस पॉइंट पे मैंने लिया था उसके बाद वो रिवर्सल आ गया, एंड उसके बाद फिर वो स्टॉक कट भी नहीं रहा था, पता नहीं देयर वाज सम ग्लिच फ्रॉम द ब्रोकर, आई थिंक, आई डोंट नो, और मे बी मेरा नेट न्यूज़ टाइम पे प्रॉपरली चल रहा था। बट जब तक मैं एग्जिट हुआ तब तक ऑलमोस्ट 26,000 का लॉस, वहाँ पे 25, 26, 30 का भी दिखा रहा था एक टाइम पे, बट अगेन मैंने एक स्टॉप लॉस वहाँ पे फिक्स कर दिया था, एंड फाइनली मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया गाइज, एंड आई हैड अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 26,000 रुपीज़। नाउ गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल देता हूँ कि जौन से भी स्टॉक्स गाइज मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ या जो भी काम करने को बोल रहा हूँ, राइट, मेक श्योर यू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड इट इन MIS, ठीक है, या फिर CNC में काम करो, 5 या 6 या 10 क्वांटिटी के साथ ही काम करो गाइस, ठीक है, बिकॉज जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक आपको अगेन वो चीज़ आएगी नहीं, ठीक है। या हो सकता है आप बोलो कि सांवरिया ने ये स्टॉक बोला है, ठीक है, तो इसमें लाइक लगा दो हजारों करोड़ों रुपए, ठीक है, डोंट डू दैट थिंग, ओके गाइस, पहले सीखने के ऊपर फोकस करो, बिकॉज इट माइट टेक यू लाइक से 3 months 4 months 1 year probably 2 years डाउन द लाइन, बट अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, द डे यू विल बी लर्निंग दैट आउट राइट, उस दिन आपको आपकी पिछली सारी की सारी जितने भी लर्निंग के लिए आपको टाइम लगा या आपको जितना भी संघर्ष करना पड़ा, अभी स्ट्रगल्स लगी हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को एनकैश कर पाओगे गाइस, ठीक है। यही चार्ट पैटर्न जो मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बीट से मारुति, बीट से क्या बोलते हैं अदानी ग्रीन हो गया, या GETND हो गया, जितने भी सारे स्टॉक के पैटर्न्स है गाइस, तो ये सारी की सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे सीखना शुरू करो, ठीक है। एक एक दो दो तीन तीन चार चार स्टॉक्स के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। अगेन मेक श्योर यू डू टेक द स्टॉक्स बेस्ड ऑन द रिस्क कैपिटाइट, ठीक है। अभी इसमें रिस्क कैपिटाइट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज जैसे मैंने बोला था ये SCA का स्टॉक है, मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपये तक जाएगा, ठीक है। अभी कल है थर्सडे और किसी ने सपोज अगर आज 90 रुपीज़ के ऊपर लिया है, तो अगर ये स्टॉक मैक्सिमम गिरता भी है तो इसमें मैक्सिमम आपको 80 रुपीज़ तक का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। मतलब 9 रुपये आपके पर स्टॉक में जाएंगे। अगर आपने लाइक सपोज आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल, 9 रुपये आपके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होता है तो। नाउ सपोज इफ यू हैव टेकन 100 quantities of the stock and the stop loss is 9 rupees per stock, so your total loss is going to be 900 rupees. Are you okay with this loss guys? अगर आपको ये 900 रुपये का लॉस बहुत ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी क्वांटिटीज लो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। फॉर सम पीपल इट माइट बी small amount, for some people it is very huge amount as well, right? For a labor person who's hardly earning 500 to 600 rupees the entire day, they also they cannot take such kind of risks, right? And again some people are having, again मैं again एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपको अगर 9 रुपये का एक स्टॉक का लॉस होगा तो अगर आप
₹9 से भी दुखी हो या मतलब मैं तो बोलूँगा कि यार एटलीस्ट 2 या 3 क्वांटिटीज ही मैक्सिमम लो, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रेंज बना के बैठा है स्टॉक, ठीक है। जैसे अगेन उसमें अपोलो हॉस्पिटल में मैंने बताया था, यहाँ पे आपका सिर्फ ₹5 का स्टॉक था और इसमें टारगेट बहुत बड़ा मिलने की गुंजाइश थी, ठीक है। यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पे राइट, जहाँ पे मैंने बोला था नियर बाय दिस पॉइंट 10 AM, तो यहाँ पे आपका 60 रुपीज़, यहाँ पे 2360, सिर्फ ₹5 का स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे अगर यही वाली मूव अगर से पहले आ जाती तो आपका टारगेट बहुत ज़्यादा मिलना था, राइट। इट वॉज हैविंग अ, सपोज इस पॉइंट पे अगर बोला है 70 पे, 65 पे बोला था एक्चुअली मैंने, 70 लगा लो, 70 से लेकर अगर 24 हो, लाइक यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 30 रुपीज़, राइट गाइज। 30 रुपीज़ प्रॉफिट फॉर ओनली 5 रुपीज़ ऑफ लॉस, so it is almost 1:6 ratio, right, the risk to reward. So these are the things, okay, you have to understand in the market. जब तक इसको सीखोगे नहीं ना तब तक आएगी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करो सीखने के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच till now. If you're watching the videos, if you're enjoying it, then make sure you're making the proper notes as well guys, because मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में 9 से लेकर 9:15 तक मार्केट जब ओपन होता है, प्री ओपन मार्केट, बाय दैट टाइम मेक श्योर वॉट एवर यू आर लर्न, राइट, उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। आप बोलोगे कि सांवरिया ने बोला था वीडियो में मेरे को याद रहेगा, बट अगेन दैट डजंट हैपन गाइस। जब तक आप उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हाथ से अपने खुद के नोट्स दोबारा रोज रोज नहीं देखोगे ना, तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी गाइस, ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ। So that's it today guys for this today's update of 30th of December. Again, the day ended with a bad zone, you know. I was having a loss, of course. I missed myself, you know, giving I told you all to take entry in Eicher Motor, but again जब तक मैं टाइप करके स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ करता हूँ गाइज, मैं ना हमेशा जब भी अपनी एंट्रीज लेता हूँ सबसे पहले मैं टाइप करके स्टूडेंट्स को भेजता हूँ, अपनी एंट्री में हमेशा बाद में लेता हूँ, सो दैट उनको कभी लाइक रॉन्ग एंट्री ना मिल जाए, ठीक है। बिकॉज अगेन थोड़ा सा उसमें अगर फर्क हो जाएगा ना एंट्री के टाइम पे, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो दिक्कत करेगा, ठीक है। स्टॉक चूज करना, किस स्टॉक में काम करना, दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट किस पॉइंट पे, किस प्राइस पे, किस स्टॉक को लेना है ना, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये हमेशा याद रखना, ये दोनों रूल, ठीक है। तो with this note guys, I'm just ending up the video. I hope you are still learning, and thank you so much for watching the videos. Have a good day guys. Bye bye. I'll meet you tomorrow.